Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study the 12th class physics unit 3rd effects of current and magnetism. And the first topic is magnetic field. What is magnetic field? The space around a magnet where its influence can be experienced by a ferromagnetic or magnetic substance is known as magnetic field. देखिए मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। अगर हमारे पास लेट करें ये एक बार मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ एक 3 डायमेंशन स्पेस, यहाँ पे 3 डायमेंशन स्पेस ऐसे जहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस किया जा सके। लेट कि अगर यहाँ तक इसका फील्ड है, ये स्पेस है जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस किया जा सकता है, तो उस फील्ड में हम एक फेरोमैग्नेटिक या फिर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर लेके आते हैं, लाइक अगर हम एक अनदर बार मैग्नेट यहाँ पे लेके आएंगे इसके फील्ड में, तो वो बार मैग्नेट और इस मैग्नेट में या तो अट्रैक्शन होगी या फिर रिपल्शन होगी। वो दो केस होते हैं। लेट्स सी, वी ड्रॉ अ bar magnet with north and south poles. Here two different poles are north and south pole, and this is the 3 dimension space around this magnet. So we can call it its magnetic field. If we draw another bar magnet with north and south pole, this bar magnet is set up in this field of this bar magnet, then the north pole and south pole will influence each other, and this north pole will attract toward the south pole, because unlike poles are attract each other and like poles are repelled. Means if here south pole and we take here north pole, then this magnet will be repelled by this magnet. So this is influence of this magnet which is experienced by this magnet, and this is a magnetic substance. Yes class, the second topic of our unit 3rd is Oersted experiment. Oersted is a scientist and he done an experiment, so the name Oersted experiment is named after the scientist's name. Here a cell of positive and negative terminal, a key and a wire, or you can say it a conductor A, B, is set up in this way that a magnetic needle is pivoted on a stand and it is held below the wire. So when this key is on, the needle first is set up between these 2 points. This is its south pole and this is its north pole. After the key is on, then this needle gets deflected towards this direction. So here we can say that if I draw the geographical directions south, north, east and west, here the current flows from positive to negative terminal, and in this way the current is flowing from A to B point, or from a needle it is flowing from south to north point. Then the north pole of this needle will get deflect toward west point, and in this way this north pole of the needle will deflect toward this point, and this will be the west direction, and the final direction is S dash and N dash. देखिए ओरस्टेड ने क्या दिखाया कि अगर एक वायर ए बी ऐसे हेल्ड की जाए कि नीडल के ऊपर वायर हो और वायर में करंट जो है वो ए से बी तक चल रहा हो, जैसे कि नीडल का ये साउथ एंड है और ये नॉर्थ एंड है और वायर ऐसे है और वायर में करंट इस तरफ से इस तरफ जा रहा है ऐसे करके, और नीडल ये है, तो जैसे ही की ऑन करते हैं ये नीडल ऐसे घूम जाती है, इस तरफ रोटेट कर जाती है, मींस ये वेस्ट की तरफ घूम जाती है अगर हम जियोग्राफिकल डायरेक्शंस में देखें। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ओरस्टेड ने फिर बाद में बताया कि ये इसलिए हुआ कि जैसे ही करंट ए से बी तक जाता है तो इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है।
वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक नीडल को अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो वो अट्रैक्ट या रिपेल होता है। देयरफॉर अगर ए से बी में करंट जा रहा है और इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो इस नीडल का है, ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे। और इन्फ्लुएंस का होगा क्या कि वायर में चल रहा करंट जैसे ही चलेगा तो ये नीडल को इस तरफ घुमा देगा, ये रोटेट हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स, अगर हम इस सेल को चेंज कर दें, इसकी पोजीशन को चेंज कर दें, अगर हम यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव कर दें, मीन सेल को हम घुमा दें तो करंट की डायरेक्शन बी टू ए हो जाएगी। बी से ए का होने का मतलब है कि अब करंट नॉर्थ से साउथ में फ्लो करेगा। तो अब की बार नीडल जो है वो वेस्ट की तरफ ना जाके ईस्ट की तरफ घूम जाएगी, ये एंड जो है वो इस तरफ मुड़ जाएगा। अगर करंट उस तरफ से इस तरफ फ्लो करता है तब डायरेक्शन ये ना होके ये हो जाएगी, नॉर्थ टू ईस्ट घूम जाएगी। मींस अगर हम किसी भी फील्ड में चेंज करते हैं, मींस अगर हम सेल को चेंज करते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये नीडल की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। यहां से ओरेस्टेड दो बातें बताता है कि एक वायर में चल रहा करंट चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस नीडल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से ये नीडल घूम जाती है। और दूसरा पॉइंट ये कि जब हम करंट को ऑफ कर देते हैं, मींस इस की को हम बंद कर देंगे, इस यहां से इसको निकाल देंगे, ओपन कर देंगे सर्किट को, उस केस में नीडल जो है बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आ जाती है, इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, साउथ से नॉर्थ में। ये नीडल दोबारा से वही पोजीशन पे आ जाएगी, पहले ये ऐसे थी तो अब दोबारा से ये ऐसे हो जाएगी। यस स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट को लर्न करने के लिए हमें एक रूल दिया हुआ है, स्नो रूल, जिसको हम स्नो रूल बोलते हैं। स्नो रूल का मीनिंग क्या है? देखिए यहाँ पे हमने करंट ऐसे सेंड किया ए से बी तक, जैसे साउथ से नॉर्थ जा रहा हो, तो ये हो गया साउथ टू नॉर्थ। इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड द वायर इज ओवर द नीडल, ओ मींस ओवर द नीडल, दिस इज फॉर साउथ, दिस एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ, O means over the needle, wire is over the needle, then the needle will deflect toward west, W means west. This is an easy method to learn this experiment. When current is flowing from south to north direction and wire is held over the needle, O means over the needle, then the needle will deflect toward west, W means west. This is snow rule. If we change in either field, means if north is this and south is here, then this will be the east. और अगर हम O की जगह पे मतलब हम वायर को नीडल के नीचे रखेंगे तब भी यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा। सिर्फ एक केस को चेंज करने से ये डायरेक्शन जो है वेस्ट की ईस्ट हो जाएगी। चाहे आप फिर साउथ से नॉर्थ के में बजाय नॉर्थ से साउथ में करंट सेंड करिए तब भी ये ईस्ट हो जाएगा। और अगर साउथ टू नॉर्थ करंट चल रहा है और ओवर की जगह हम वायर को नीचे रख लें तब भी ये ईस्ट हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों में चेंज कर दें तब ये सेम टू सेम रहेगा। स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट को लर्न करने के लिए हमारे पास दूसरा रूल भी है जिसको हम स्विमिंग रूल भी बोलते हैं। स्विमिंग रूल में क्या है कि अगर एक पर्सन स्विमिंग कर रहा है, वाटर में स्विमिंग कर रहा है, तो उसका फेस जो है वो डाउन होगा, टुवर्ड्स द वाटर होगा, उसके हैंड जो है वो ऐसे होंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर हम ऐसे एज्यूम करें कि करंट उसके फिट से एंटर होके और उसके हेड से निकलता है, मींस उसके पैर से एंटर होके इस तरफ से और इस तरफ जाता है, करंट की ये डायरेक्शन है, और नीडल को हम उस पर्सन के नीचे एज्यूम करें, जैसे वो ये तैर रहा है, ये पर्सन को मान के चलो इस तरफ उसके हैंड है और इस तरफ उसके फिट हैं, और यहाँ से करंट एंटर होता है और यहाँ से निकलता है, और यहाँ पे हमने नीडल रखी हुई है, तो वो जो नीडल है वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ रोटेट कर जाएगी, मुड़ जाएगी लेफ्ट हैंड की तरफ। ये भी इसको लर्न रखने का एक नियम है, एक रूल है ओरेस्टर्स एक्सपेरिमेंट को। यस क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है बायोट-सवार्ट्स लॉ। बायोट और सवार्ट आर टू साइंटिस्ट which performed
many number of experiments, and after that they conclude a law which named Biot-Savart's law. If we consider a conductor X, Y, by which I current is flowing through it, अगर हम एक करंट एलिमेंट एक्स वाई एज्यूम करें और उसमें से आई करंट फ्लो कर रहा हो, तो हमने एक पी पॉइंट लिया है यहाँ पे, जिसका इस वायर से हमने डिस्टेंस ले लिया जो थीटा एंगल बना रहा है, और वो डिस्टेंस है आर। उस डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है, कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस वायर की वजह से। क्योंकि ओरस्टर्स एक्सपेरिमेंट में हमने ये प्रूव किया कि एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो बायट-सावर्ट लॉ से ये बताएंगे कि उस वायर में चल रहे करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे करंट एलिमेंट को ना लेके एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेते हैं जिसकी लेंथ हमने एज्यूम की है dl, यहां से यहां तक ये लेंथ dl एज्यूम की है, और ये जो करंट एलिमेंट है, ये जो करंट एलिमेंट हमने लिया है dl, ये थीटा एंगल क्रिएट करता है इस पॉइंट के साथ, p पॉइंट के साथ। तो जैसे कि आपको पता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को b से डिनोट करते हैं, तो ये स्मॉल करंट एलिमेंट है तो इसके लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा dv, और ये dv बायट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस वायर में से चल रहे करंट के। फर्स्ट पॉइंट, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड, dv जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस करंट एलिमेंट के जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली लिया है, dl। नंबर 2, थर्ड, dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंगल थीटा एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। एंड फोर्थ, dv इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेट अस कंबाइन these four elements on combination dv directly proportional to I dl sin theta by r square, and further dv is equal to k I dl sin theta by r square. What is k? K is constant of proportionality and value of k is mu naught upon 4 pi. This is mu m by u। ऐसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, लिखते ऐसे हैं, u को ऐसे लिख के इधर से थोड़ा घुमा देते हैं, ये म्यू नॉट बन जाता है, नॉट जीरो के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। होता क्या है म्यू नॉट, ये म्यू क्या है, म्यू होता है परमेबिलिटी, म्यू इज परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। यस स्टूडेंट्स, हमने तो निकाल लिया कि dv की वैल्यू आ गई है, यहां से dv आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे dv की वैल्यू आएगी कितनी, लेकिन हमें यहाँ पे इस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं पता कि वो डायरेक्शन कैसे होगी। तो वो डायरेक्शन होती है यहाँ पे परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जिसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। और ये कौन सा रूल बताता है, इस रूल को बताएगा राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर आप एक राइट हैंडेड स्क्रू लेते हैं, राइट हैंडेड स्क्रू, और ये मान के चले कि जिस तरफ इसकी टिप होती है उस तरफ ही करंट फ्लो करता है, तो जो इसकी एडवांस डायरेक्शन होती है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। मैं आपको समझाता हूं, देखिए, अगर हम इसको एक स्क्रू मान लें
और मैं ये मान लूं कि ये जो पॉइंट है इसकी टिप है इधर और इधर इसका हेड है, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो राइट हैंडेड है तो इसको हम राइट हैंड की तरफ ही घुमाएंगे, ऐसे राइट हैंडेड को राइट हैंड की तरफ ही घुमाते हैं। तो जिस तरफ ये एडवांस कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है आगे, ये जो डायरेक्शन हुई ऐसे इस तरफ में, ये क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब अगर करंट इसमें इस तरफ जा रहा है तो हम सक्रिय को ऐसे रखेंगे कि टिप जो है वो करंट की डायरेक्शन को बताए ऐसे। तो जिस तरफ सक्रिय को हम ऐसे घुमाते हैं मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, वो यहां से एंटर करेगा इस पॉइंट से, अगर पी पॉइंट की बात करें तो यहां से एंटर करेगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और घूम के उधर से वायर के इधर से निकलेगा, यहां से आउटवर्ड होगा यहां भी परपेंडिकुलर, वहां भी परपेंडिकुलर है। लेकिन इस तरफ अगर हम ये एलिमेंट इधर ले लेते, ये पी पॉइंट यहां पे ले लेते, तो यहां पे हम क्रॉस नहीं डॉट से शो करते मैग्नेटिक फील्ड को, डॉट से। डॉट का मतलब है कि फील्ड परपेंडिकुलर है बट आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर है, आउट आ रहा है। और क्रॉस का मतलब है कि परपेंडिकुलर है बट इन द प्लेन ऑफ पेपर है। तो ये राइट हैंड सक्रिय रूल हमें डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, थैंक यू।